Hello guys and welcome back to my channel Basics the Strong Roots. My name is Richa Yadav and today we will discuss the topic balance sheet and its right side, and that is nothing but asset side of the balance sheet. So what is an asset for a company? Asset is something which can be liquidated. If we will value a company, we will do a valuation for a company, then we will give the value to the assets of the company to give it particularly a valuation to its assets. That is nothing, it can be cash, current assets, long-term assets, short-term assets. So what company actually holds in its hand, and we can value that, and it can be liquidated in a particular period of time, say 1 year or 3 or 5 years. That is called an asset for a company. So before we start discussing the components of the asset side of the balance sheet, I want to show you all something. In my last video of liability side, I have shown you one formula. What was that? That was total assets. I am using T for total assets minus total liabilities. You guys can see this, okay, is equal to shareholders equity. That is nothing but the capital of the company, the capital of the owner of the company. Okay, now what if we will flip that? If we want to get the assets of the company, in that formula we got the shareholders equity, the capital of the company. But now if we will flip this formula, what will happen? Total assets. If you want to get the total assets of a company, that will be shareholders equity plus liabilities. So here we can say that a company's total asset can be calculated by adding its equity or capital with its liabilities. So the asset size of the balance sheet is equal to capital of the company plus its liabilities. So whenever we will actually calculate the asset of the company or value of the company, then what will happen? We will take the capital of the company and we will pay all the debts of the company, and then whatever the amount will left with us, that will be called the asset of the company. So here we have to pay that liabilities. So how do we do the valuation of a company? That I'll do is an individual session on that. So we will discuss that later. So here the formula is, for calculating the asset, total asset is equal to shareholders equity or capital plus liabilities of the company. So here we will discuss the components of the asset side of the company. So what are the components of the asset side of the company? So first we will discuss the current assets. Current assets are nothing but those assets which can be liquidated within a time span of 1 year. Like 1 साल के अंदर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दैट कम्स अंडर करंट एसेट्स. जो आपको बहुत जल्दी ही कैश जिसके अगेंस्ट आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स. सो पहले हम क्या लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक. वी कैन स्टार्ट विथ क्लोजिंग स्टॉक. This is the column of amount and we write as balance sheet as on the financial year ending date. We will write it here. I haven't written as on 31st March 2022 or 21, whatever number. So closing stock, the amount will come here. So what is closing stock? Closing stock is the amount of, or you can say the valuation of raw material which is left at the end of the year with the company, or unsold finished products. Like जो भी unsold finished products होते हैं और जो raw materials होते हैं,
अगर वो कंपनी के पास बचा है दैट, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ऑब्वियस ही बात है क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। तो ईयर एंड में हमारे पास में उसका जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है, हियर आई एम राइटिंग रॉ मटेरियल प्लस फिनिश्ड प्रोडक्ट which is unsold, उसका valuation we will show here, that is called closing stock, and that comes under current asset. And another current asset is debtors. डेटर्स कौन? डेटर्स वो जिनको हमने पैसा दिया है, कंपनी ने जिनको पैसा दिया है वो, या कंपनी ने उनकी छोटे किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कंपनी ने उनके साथ में कैसा अग्रीमेंट किया है। तो डेटर्स को हमने पैसा दिया है और उनसे हमें पैसा मिलने वाला है, सो डेटर्स हमारे एसेट हैं क्योंकि उनसे हमें कैश मिलेगा, सो दैट कम्स अंडर एसेट। अनदर थिंग, कैश इन हैंड। Cash in hand is what? Cash in hand is nothing but the actual cash which a company is holding in its hand. Actually कंपनी के अकाउंट में कितना कैश है, that comes under cash in hand segment, which we show in the asset side of the balance sheet. So apart from cash in hand, there are cash equivalents also which we can show here. तो cash equivalents में हमारे क्या आते हैं? कैश एक्विवेलेंट्स में हमारे होते हैं ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इट, इफ नॉट देन आई विल एक्सप्लेन। देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं और बहुत कम ही उसमें इंटरेस्ट होता है और कभी कभी तो नहीं भी होता है। तो ट्रेजरी बिल्स 3 मंथ्स मिनिमम उनका टाइम रहता है। ट्रेजरी बिल्स जिसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, वो कैश दैट इज कॉल्ड कैश एक्विवेलेंट हम कह सकते हैं, वो भी करंट एसेट के अंतर्गत आता है। और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हमारे, जो कि डिपेंड्स ऑन द बैंक्स पॉलिसी और बैंक क्या ऑफर कर रहा है, 6 मंथ्स के लिए भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 10 और 12 मंथ्स के लिए भी कर सकते हैं, और हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। मेनली ये होता है कि कंपनीज इसलिए शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में पैसा लगाते हैं क्योंकि अगर 1% भी इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, तो अगर उनको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लाइक अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करती हैं, हमेशा उनका जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, इट कैन बी 10 lakhs 20 lakhs, तो उस पर अगर 1% मिलेगा तो वो उनके दैट इज़ मोर देन इनफ। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में पैसा ऐसा फालतू पड़ा रहे सेविंग अकाउंट में, उससे मच बेटर है कि हम उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दें तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो जो थोड़े टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करती है कंपनी फॉर इंटरेस्ट, सो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड दैट ऑल्सो कम्स अंडर करंट एसेट। नाउ वी विल सी द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती हैं? फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, जिनको हम लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए कंपनी परचेज करती है और उन्हें यूज़ करती है सिर्फ 5 और 10 ईयर्स, वो भी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स हैं और उनका भी वैल्यूएशन किया जाता है। तो जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है दैट कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। अभी मैं पूरा फिक्स्ड एसेट दिखा रही हूँ, बट कंपनी की बैलेंस शीट में ये सेगमेंट वाइज होता है, लाइक बिल्डिंग का इतना, फर्नीचर इतना, मशीनरी इतना, इक्विपमेंट्स इतना, दैट कम्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स। After that comes long term assets. So long term assets में हमारे क्या आ जाएंगे? Marketable securities. Marketable securities क्या हो गए? जिन्हें हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लाइक कंपनीज के पास में कोई अच्छा वैल्यूएशन के शेयर सर्टिफिकेट्स है या कंपनी में कोई सिक्योरिटीज होल्ड करी हुई हैं जिन्हें वो लिक्विडेट कर सकते हैं। से मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो तुरंत लिक्विडेट कर ले या फिर वो 1 ईयर 3 ईयर या फिर 5 ईयर्स का मान के चल रहे हैं कि हम इतने टाइम में ये बेचेंगे। तो जो सिक्योरिटीज कंपनी ट्रेड कर सकती है मार्केट में, चाहे वो डेट मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, दैट कम्स अंडर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। एंड नाउ इनटैंजिबल एसेट्स।
टैंजिबल एसेट्स तो हमारी फिक्स्ड एसेट्स ही हो गए जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में. दैट कम्स अंडर टैंजिबल एसेट्स. नाउ इनटैंजिबल एसेट्स. Intangible assets are nothing but which we can't see and feel, but those are assets and keeps some value for us. So intangible assets में हमारी कौन सी assets आती हैं? सबसे पहले goodwill and patents. So these are intangible assets. I am going to take an individual session for these two terms in intangible assets, goodwill and patents. So don't worry about that. I'll take an individual session for these two terms. अभी goodwill, what is goodwill? Goodwill is जो कंपनी की goodwill है, और आप कह सकते हो कि कंपनी ने जो अपनी पहचान बनाई है, that is called goodwill. तो क्या होता है कि कंपनी की goodwill. So here I want to add some more thing about goodwill कि जो goodwill का एक एग्जाम्पल है कि किसी कस्टमर का कोई प्रोडक्ट ख़राब निकल गया और उसने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, एंड इंश्योरेंस कंपनी इज़ डिनाइंग टू पे द इंश्योर्ड अमाउंट कि हम नहीं पे करेंगे, ये हमारी गलती की वजह से नहीं हुआ है, या फिर उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंतर्गत वो हुआ होना चाहिए और वो नहीं हुआ है. तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ नॉट रेडी टू पे फॉर दैट. बट कंपनी अपनी गुडविल के लिए वो क्या करती है, कस्टमर को अराउंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट पे कर देती है. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद गुडविल. कंपनी अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए, कंपनी चाहती है कि हमारी गुडविल ना ख़राब हो. लोग अगर हमें अच्छा जानते हैं, हमारे ब्रांड को अच्छा जानते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छा जानते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं, तो कंपनी अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए अगर 50% ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर को पे करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द गुडविल पेमेंट. सो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल का जो वैल्यू होता है, दैट इज एक्सेस वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग लाइबिलिटीज फ्रॉम इट्स एसेट्स. तो गुडविल किसी भी बिजनेस की एक्सेस वैल्यू होती है जो कि कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करने के बाद में बचती है. तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, कैपिटल. तो उसका कैपिटल से जो हमारा एक्सेस ब्रांड रिकॉग्निशन बनता है और हमारी जो पहचान बनती है लोगों के बीच में, वो गुडविल का हमारा वैल्यूएशन होता है. दूसरा चीज़ पेटेंट्स. पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स इज समथिंग विच इज कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड कि कंपनी ये चीज़ मैन्युफैक्चर करेगी, या फिर कंपनी अपना लोगो है उसका भी पेटेंट ले लेती है कि हम ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. से कोई कंपनी कोका कोला की कंपनी को ले लीजिए. अगर कोका कोला की कंपनी कोका कोला बना रही है तो उसने वो चीज़ का पेटेंट ले रखा है कि हम कोका कोला बनाएंगे और हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसका उन्होंने पेटेंट ले रखा है. एंड नो अदर पर्सन इज़ गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मूला. और वैसे भी किसी को वो नहीं पता है, नो अदर पर्सन इज़ गोइंग टू यूज़ दैट फॉर्मूला. और ये लोगो नहीं ले सकते, ये नेम नहीं यूज़ कर सकते. तो पेटेंट वो चीज़ जो कंपनी ने अपने लेवल पे बनाई है और उसका रजिस्ट्रेशन किया है, और कंपनी ये चाहती है कि उस कंपनी के अलावा कोई और उस चीज़ को, उस लोगो को, उस नाम को और उस बिजनेस के फॉर्मूला को, या स्पेशली उस जो भी फॉर्मूला है उसको यूज़ ना करे. नाउ कम्स अकाउंट्स रिसीवेबल्स. अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्या है कि कंपनी अगर किसी भी कस्टमर को कोई चीज़ क्रेडिट पे देती है या क्रेडिट पे बेचती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, या फिर कोई सर्विस कंपनी है तो उसने क्रेडिट पे सर्विस डिलीवर करी, तो वो कंपनी उनसे रिसीवेबल है. वो कंपनी उन कस्टमर से जिनको हमने क्रेडिट पे सेलिंग करी है, उनसे वो रिसीवेबल है, वो पेमेंट के लिए, कैश के लिए, और वो जिसके थ्रू भी पेमेंट करे. तो दैट कम्स अंडर अकाउंट्स रिसीवेबल्स. जितना भी कंपनी ने क्रेडिट में सेलिंग करी है या सर्विस डिलीवर करी है, सो कंपनी इज रिसीवेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पेमेंट, एंड दैट कम्स अंडर अकाउंट्स रिसीवेबल सेक्शन in the balance sheet of the company. So hope you guys understood this asset side or right side of the balance sheet, and if you guys have any kind of questions or you want me to add something or you want me to improve something, then please do write in the comment section.
like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, because whenever you will press the bell icon you will get the notifications of my new videos. And एक ज़रूरी बात, मास्क एंड सैनिटाइज़र के बिना घर के बाहर नहीं जाना है, और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर के बाहर जाए. Stay safe and healthy. Bye bye.